فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن قانون ساز کونسل سید امین الحسن جعفری نے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے پروٹیم چیئرمین کا چارج سنبھال لیا ہے۔ سنکرانتی تہوار کے لیے حیدرآباد سے اپنے آبائی مقامات جانے والے افراد کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن پر ہجوم دیکھا جا رہا۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے ریلوے اسٹیشن میں ماسک کا استعمال نہ کرنے والے افراد پر 500 روپے جرمانہ عائد کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ماسک استعمال نہ کرنے والے 169 افراد سے 34,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے تمام ریاستوں کے لیے آکسیجن تیار رکھنے کے احکامات کی اجرائی کے بعد تلنگانہ میں محکمہ صحت نے ریاست میں آکسیجن کی فراہمی کی سہولت کو بہتر بنانے کے اقدامات شروع کر دیے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 یوم کے دوران ریاست میں آکسیجن کی پیداوار میں مزید اضافے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کے محکمہ صحت اور چیف سیکرٹریز کو روانہ کیے گئے مکتوب میں اس بات کی ہدایت جاری کی تھی کہ وہ اپنی ریاستوں میں 48 گھنٹوں کا اسٹاک لازمی رکھ لیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے اس انتباہ کے بعد ریاستی محکمہ صحت نے شہر حیدرآباد کے علاوہ رنگا ریڈی، ملکاجگری، میڈچل، محبوب نگر، میدک اور دیگر اضلاع میں موجود آکسیجن پلانٹس کے علاوہ سرکاری دواخانوں اور خانگی دواخانوں میں موجود آکسیجن پلانٹس کی کارکردگی اور ان میں موجود تکنیکی خامیوں کو فوری دور کر لینے کی ہدایت جاری کر دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 ہفتوں کے دوران کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے خدشات کے تحت مرکزی وزارت صحت کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے اور ان ہدایت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حکومت تلنگانہ کی جانب سے دی گئی ہدایت کے مطابق آکسیجن کی پیداوار میں اضافے کے علاوہ آکسیجن کے بستروں کی تعداد میں اضافے کے اقدامات کیے جانے لگے ہیں۔ سرکاری دواخانوں میں جہاں آکسیجن بستروں پر غیر کورونا مریض ہیں انہیں ڈسچارج کرتے ہوئے خالی کیا جا رہا تاکہ آئندہ دنوں کے دوران اگر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں فوری آکسیجن بستر کی فراہمی عمل میں لائی جا سکے۔ تلنگانہ میں فی الحال 324 ٹن آکسیجن کی سہولت موجود ہے اور چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے دی جانے والی ہدایت کے مطابق محکمہ صحت تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے 500 ٹن آکسیجن کی سہولت تیار کرنے میں مصروف ہے۔ ریاست میں گزشتہ کورونا وائرس کی لہر کے دوران 140 ٹن آکسیجن کی سہولت موجود تھی جس میں دگنا اضافہ کیا گیا اور ریاست کے بیشتر سرکاری دواخانوں میں آکسیجن پلانٹس کی تنصیب کے علاوہ بستروں کو آکسیجن سے مربوط کرتے ہوئے مریضوں کو سہولتوں کی فراہمی کے اقدامات کیے جا رہے۔ ملک میں کورونا وبا کی تیسری لہر کے آنے کے بعد سے ہی صورتحال دھماکہ خیز بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 2,47,417 نئے کیسز سامنے آئے اور اس کے ساتھ ہی فعال کیسز کی کل تعداد 11,17,531 ہو گئی۔ در اثنا بدھ کو 76,32,024 افراد کو کووڈ ویکسین لگائی گئی اور جمعرات کی صبح 7 بجے تک موصول ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک 1,54,61,39,465 افراد کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وقت متاثرہ افراد کی کل تعداد بڑھ کر 3,63,17,927 ہو گئی۔ اس عرصے میں مزید 380 مریضوں کی موت کے بعد اموات کی کل تعداد 4,85,035 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 84,825 مریضوں کے صحت یاب ہونے کے بعد اس وبا سے نجات پانے والوں کی مجموعی تعداد 3,47,15,361 ہو گئی۔ اسی مدت میں 18,86,935 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔
चूंकि ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन रियासत भर में फैलते रहते हैं, क्योंकि 1 और 5 जनवरी के दरमियान तरतीब दिए गए 87% नमूने मुख्तलिफ किस्म के थे, ज्यादातर जेएचएमसी इलाके के आसपास के। हामिला खवातीन में एक खौफ है, क्योंकि वो इस बात से बेखबर हैं कि उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। डॉक्टर बिंदु प्रिया, यूरो गायनेकोलॉजिस्ट और माहिर अमराज निस्वा, किम्स अस्पताल इन इक़दामात की फहरिस्त बताती हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। वो कहती हैं कि हामिला खवातीन पर पड़ने वाले असरात और उन एहतियाती तदाबीर की वजाहत करते हुए जो ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, जब हामिला माओं को ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। हामिला खवातीन पर ओमिक्रॉन के असरात अभी तक पूरी तरह से मालूम नहीं है। हमल से कोविड होने का खतरा नहीं बढ़ता, लेकिन ये एक संगीन बीमारी हो सकती है जिससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा लाहक हो सकता है। हामिला खवातीन को भी उन्हीं एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। नरसिम्हा रेड्डी नामी एक शख्स की जमीन जो कि बेगमपेट में मौजूद है, उसके डॉक्यूमेंट्स को फेक बताते हुए गहना प्रोजेक्ट और वासमीन नीमन प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से फेक बताकर वहां पर तामीरात किए जा रहे और उस जमीन पर कब्जा किया जा रहा, जिस पर जमीन के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई है। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। और तेलंगाना राष्ट्र समिति का एक जिम्मेदार आदमी की हैसियत से मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कि खुसूसियत से जो लैंड ग्राबर्स है, जो आज तेलंगाना में लैंड ग्राबिंग का जो यानी कि बिजनेस पीक पे है, उसके जिम्मेदार कौन है, उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि इंसानियत ख़त्म हो गई है। आज यहाँ पर जितने भी लैंड ग्राबर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे वैसे लैंड ग्राबिंग के कारोबार में मसरूफ़ है। और उसी तरीके से एक हमारे जो ये है वीरेंद्र तिवारी साहब जो है वो एक नरसिम्हा रेड्डी साहब से जीपीए लिए, क्योंकि नरसिम्हा रेड्डी साहब एक ओल्ड एज के आदमी 80 ईयर्स ओल्ड है, उनके तरफ से उन्होंने कोई भी चीज़ को फॉलोअप नहीं कर सकते बोल के हमारे तिवारी साहब के हाथों से उसके ऊपर लेके अपने तरफ से जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन लैंड ग्राबर्स बगैर इनको ऊपर लेके एक फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसको अपना इन्फ्लुएंस से वो जगह पर जाके उसको ऑक्यूपाई कर लेके लाइन को, उसके ऊपर अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, और जबकि ये लोग मुसलसिल उसके ऊपर फॉलोअप करने के बावजूद भी ये लोग हेल्पलेस हैं। और इस सिलसिले में हमारी अपील है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से और बिलखुसूस कमिश्नर ऑफ जीएचएमसी से और केटीआर साहब से और अपने डीजीपी से और कमिश्नर से कि ये मामले में एक सीरियस नोट ले और जितने लैंड ग्राबर शहर में चल रहे हैं इनके ऊपर एक्शन लेके इनके ऊपर जहाँ तक हो सका कि अब ये लैंड ग्राबिंग के मामले खत्म करें तेलंगाना से। कर्नाटक हुकूमत ने शहर में कोविड के मामलात में हालिया इजाफे के बाद जनवरी के आखिर तक बेंगलुरु में क्लास 1 से 9 तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। वजीर तालीम बीसी नागेश ने इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा है कि चूंकि बेंगलुरु में इन्फेक्शन की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है, इसलिए ये फैसला बच्चों के मुफाद में किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बाकी रियासत में मुतल्लिका अजला के जिले कमिश्नरों की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है कि वो स्कूलों को खोलने या बंद करने के बारे में फैसला करे। ताहम स्कूलों में केसों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। सिंगल क्लासेस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही। ताहम जमीनी सूरत हाल की बुनियाद पर स्कूलों को चलाने के लिए ताल्लुका सतह पर फैसले किए जाएंगे। वजीर ने इस बात की वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में टेक्निकल कमेटी की सिफारिशात के बाद फैसला किया जाएगा। अगरचे बेंगलुरु में केसेस बढ़ रहे हैं, रियासत के 12 तालुका में 0 मुस्बित है। बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी अजला में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की वजह से पिछले 1.5 साल में तालीम मुतासिर हुई है। कर्नाटक की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कालाबोरागी में तकरीबन 16 तलबा ने कोविड के लिए मुस्बित तजुर्बा किया और 18 तलबा ने कोविड के लिए मंगल को तजुर्बा किया। कोविड-19 से अब तक कुल 45 अफराद मुतासिर हुए। अहाते में एक अलग थलग मरकज भी खोला गया है। गुजरात से ताल्लुक रखने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर ने तारीख रकम कर दी है। 16 साल की उम्र में वो जूनियर बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। तस्नीम गुज़िश्ता साल की बेहतरीन कारकर्दगी के दम पर इस मुकाम पर पहुंची है। वो ऐसा कारनामा करने वाली मुल्क की पहली खिलाड़ी है। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसी खिलाड़ी भी जूनियर सतह पर कभी नंबर 1 खिलाड़ी नहीं बन पाई।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अपनी इस कामयाबी पर बात करते हुए तस्नीम मीर ने कहा है कि उन्होंने इस कामयाबी की उम्मीद भी नहीं की थी। तस्नीम ने कहा है कि मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे इसकी उम्मीद थी। मुझे लगा कि मैं नंबर 1 नहीं बन पाऊंगी क्योंकि टूर्नामेंट कोरोना से मुतासिर हो रहे थे, लेकिन मैंने बुल्गारिया, फ्रांस और बेल्जियम में खिताब जीते। अब मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार टॉप नंबर की खिलाड़ी बन गई। ये मेरे लिए बेहतरीन लम्हात हैं। तस्नीम ने कहा है कि अब मैं पूरी तवज्जो सीनियर सर्किट पर मरकूज रखूंगी और अगले महीने ईरान और युगांडा में खेलने की मुंतजिर हूँ। अब मेरा हदफ अपनी सीनियर रैंकिंग को बेहतर बनाना है। अगर मैं कुछ अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साल के आखिर तक टॉप 200 में शामिल हो जाऊं तो ये बहुत अच्छा होगा। कोविड-19 के लिए नया नाक स्प्रे तमाम अक़साम के खिलाफ मुयस्सर। फिनलैंड के मुहक्किकीन ने एक नया नाक स्प्रे तैयार किया है जो कोविड की तमाम अक़साम के खिलाफ मुयस्सर है और ये 8 घंटे तक इन्फेक्शन को रोक सकता है। नाक का स्प्रे एक मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है जिसे फिनलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के मुहक्किकीन ने तैयार किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को गैरफाल कर सकता है। सेल कल्चर्स और जानवरों के मुताले से पता चलता है कि TRISB92 नया मॉलिक्यूल कम से कम 8 घंटे तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है, यहाँ तक कि ज्यादा खतरे के मामलात में भी। वैक्सीन के तहफ़्फ़ुज़ के बरअक्स TRISB92 का असर इसके इंतजामिया के फौरन बाद शुरू होता है। जानवरों के मॉडल्स में नाक के जरिए दिए जाने वाले TRISB92 ने नुमाइश की सूरत हाल में इन्फेक्शन के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जहां तमाम गैर महफूज चूहे मुतासर हुए थे। यूनिवर्सिटी की पोस्ट डायरेक्टरल रिसर्च एना मैकेला ने कहा है नताइज अभी तक मर्तबा जायजा नहीं लिया गया है। TRISB92 मॉलिक्यूल एक मुकम्मल तौर पर नए तकनीकी हल पर मबनी है जो फिनलैंड में हयातियाती अद्वियात को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।